اور سب سے پہلے ابھی کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پنجاب حکومت کی جانب سے 5 اگست تک لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہال روڈ خدمت گروپ کے تاجر قائدین کی پریس کانفرنس۔ صدر بابر محمود نے کہا کہ 9 روزہ طویل لاک ڈاؤن کا فیصلہ چھوٹے تاجروں اور ملازمین پر بجلی بند کر گرا۔ حکومت ظالمانہ فیصلہ واپس لے کر مارکیٹس کھولنے کا اعلان کرے، یہ مطالبہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے آج رات سے 5 اگست تک لاک ڈاؤن کا فیصلہ تاجر برادری پر بجلی بند کر گرا۔ ہال روڈ خدمت گروپ کے صدر بابر محمود نے دیگر قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ بابر محمود نے کہا کہ چھوٹے تاجروں، ان کے ملازمین اور فیملیز کے لیے لاک ڈاؤن ڈرانا خواب ثابت ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تاجر نمائندوں کو مشاورت میں شامل کیا کریں۔ جمہوری حکومتوں کا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں مشاورت سے کرتے ہیں، لیکن اس کام میں نہ تو تاجر نمائندوں کو مشاورت میں شامل کیا گیا ہے اور نہ ہی ہمارے لاہور کے چیمبر کو مشاورت میں شامل کیا گیا ہے۔ چیئرمین آل پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن ذیشان سہیل ملک نے کہا کہ اچانک لاک ڈاؤن کے فیصلے سے تاجر برادری اور ملازمین کو شدید دھچکا لگا ہے۔ صدر خالد پرویز نے کہا کہ پنجاب حکومت نے احمقانہ فیصلہ کیا ہے، اسے نہیں مانتے۔ اس طرح انارکلی بازار کے تاجر قائدین اور صدر پاکستان ٹریڈر الائنس محمد علی میاں نے بھی پنجاب حکومت کے لاک ڈاؤن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے مارکیٹس اور بازار کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ قوم کے ساتھ مذاق نہ کریں، لوگوں کے کنٹینر، لوگوں کے مال منڈیوں سے نکلے ہیں، منڈیوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کی ٹریڈ کو برباد نہ کیا جائے۔ یہ جو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، مستحق کرتے ہیں۔ ہمارے پورے سال کی جو گرائز ہیں، ہمارے پورے سال کے جو سسٹمز ہیں، وہ یہ 3 دن کے اوپر ہمارے اوپر یہ لاک ڈاؤن مسلط کیا جا رہا ہے۔ تاجر برادری نے کہا کہ پنجاب حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، بصورت دیگر تاجر از خود دکانیں کھول دیں گے۔ کیمرامین محمد احسن جاوید کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ تنظیم تاجران پاکستان نے بھی پنجاب حکومت کے لاک ڈاؤن کے فیصلے کو مسترد کر کے اسے تاجروں پر شب خون مارنے کے مترادف قرار دے دیا ہے۔ صدر سید عظمت شاہ، ذوالفقار احمد، لالا یاسر نصیر سمیت دیگر قائدین نے پنجاب حکومت سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شاہ عالم مارکیٹ میں تنظیم تاجران پاکستان کے قائدین کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر لاہور سید عظمت علی شاہ نے کی۔ اجلاس میں پیٹرن ان چیف آغا ذوالفقار، سینئر وائس چیئرمین ملک محمد نعیم، جنرل سیکرٹری لالا یاسر نصیر، جنرل سیکرٹری ٹرک ٹرالا ایسوسی ایشن عبد المتین شیخ سمیت دیگر قائدین نے شرکت کی۔ لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن نے حکومت کی جانب سے اس سے قبل 9 روز کا لاک ڈاؤن مسترد کر دیا ہے۔ لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے صدر شہزادہ سلیم خان کہتے ہیں کہ حکومت تاجروں کا معاشی قتل بند کرے۔ لاہور کار ڈیلر فیڈریشن کے صدر شہزادہ سلیم خان نے چودھری ادریس اور دیگر کے ہمراہ جیل روڈ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے اس سے قبل 9 روز کے لاک ڈاؤن کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کار لائن کا کاروبار پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے اور اب ایک مرتبہ پھر سے حکومت کار لائن کے تاجروں کا معاشی قتل کر رہی ہے، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے اگر لاک ڈاؤن کرنا ہی ہے تو کم از کم تاجروں کے ساتھ مشاورت کرے تاکہ تاجر بھی عید کے موقع پر کاروبار کر سکیں۔ نیلا گنبد انارکلی بازار کے تاجروں نے کل بڑے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ سیکرٹری جنرل نعیم میر کی تاجروں کو دکانیں کھولنے کی ہدایت۔ ریاست کا کام روزگار دینا ہے، ریاست کا کام روزگار چھیننا نہیں ہے۔ سیکرٹری جنرل انجمن تاجران کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ مزید کہا گیا کہ تاجر برادری معمول کے مطابق کاروبار کھولے، انتظامیہ کی مزاحمت ہوئی تو تاجر موجود ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ تاجروں کے معاشی قتل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معزز تاجر بھائیو، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے ہماری مشاورت کے بغیر ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت پنجاب بھر میں 9 روزہ لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ عید کے تہوار کے موقع پہ کیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سراسر زیادتی ہے۔ تاجروں کی کسی تنظیم کو، نمائندوں کو، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر یہ ظالمانہ اور جبر پر مبنی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم اس ریاستی جبر پر سراپا احتجاج ہیں۔ ریاست کا بنیادی فرض ہے کہ وہ روزگار دے۔ ریاست کا کام روزگار چھیننا ہرگز نہیں ہوتا اور ہم بالکل اپنے پورے پنجاب کے تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ بلا خوف اپنا کاروبار کریں، اپنے کاروبار کو روٹین کے مطابق جاری رکھیں اور آپ کے تاجر نمائندے آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اگر انتظامیہ اور پولیس آپ کو تنگ کرے گی
تو وہ آپ کی مدد معاونت کریں گے اور آپ کو تحفظ فراہم کریں گے. اور میں یہ بات بھی بتا دوں کہ سندھ حکومت نے اس جبکہ دوسری جانب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عرفان اقبال شیخ اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبران نے مارکیٹس اور بازار کھولنے کے مطالبے کی حمایت کر دی ہے. صدر عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کہ 8 روز طویل لاک ڈاؤن سے چھوٹے تاجر اور ان کے ملازمین اور خاندان رول جائیں گے. پنجاب حکومت کے 8 روزہ لاک ڈاؤن کے فیصلے کی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے مخالفت کر دی. صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے تاجر تنظیموں کے عید الاضحیٰ پر مارکیٹس اور بازار کھولنے کے مطالبے کو درست قرار دے دیا. عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ پنجاب حکومت لاک ڈاؤن کی بجائے مارکیٹس کھولنے اور ان کے اوقات کار بڑھانے کا اعلان کرے. موجودہ فیصلہ غیر دانشمندانہ ہے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے ٹائمنگ اس کے اوقات وہ کم کر دی جائے, اوقات کو بڑھا دیا جائے. جب آپ بڑھائیں گے تو لوگوں کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ ہم جب مرضی جا سکتے ہیں, جس وقت مرضی جائے, تو پھر لوگ اپنے ایز کے ساتھ جائیں گے اور وہاں پہ رش نہیں ہوگا. وہاں پہ رش ہوگا تو رش کو دیکھ کے وہ 1 گھنٹے بعد آ جائیں گے یا 2 گھنٹے بعد آ جائیں گے, ان کے پاس ٹائم ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بالکل یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے نا بہت اچھا رہا ان کا, بٹ اس عید الاضحیٰ پہ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. ایوان صنعت و تجارت کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر اور انارگلی بازار کے نوجوان تاجر رہنما حارث عتیق نے کہا کہ پنجاب حکومت کے لاک ڈاؤن کے فیصلے سے تاجر برادری کو شدید دھچکا لگا. حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر کے چھوٹے تاجروں اور ان کے ملازمین اور خاندانوں کو فاقے کرنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ کس طرح کا فیصلہ ہے جو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. تاجر برادری کے اندر شدید قسم کی تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے. تاجر برادری پریشان ہے. چھوٹا دکاندار جو تہوار کے موقع پہ اپنی کاروباری معاملات کو آگے لے کے چلتا ہے, جو ارننگ اس مہینے سے اس کو ہوتی ہے وہ آگے تک جاتی ہے, جو مال ان کے پاس پڑا ہے, جو آخری چند دنوں میں جس طرح کا ہمارا مزاج ہے خریداری کا, وہ کدھر مال بیچے گا, کس طرح اپنے معاملات کو چلائے گا. لاہور چیمبر آف کامرس کے قائدین نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا کہ لاک ڈاؤن کے فیصلے کو فوری واپس لیا جائے. کیمرٹین کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. حکومت کی جانب سے آج سے مارکیٹس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پنجاب اسمبلی کے اراکین اس حکومتی فیصلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بتا رہے ہیں عمر اسلم اپنی رپورٹ میں. حکومت کی جانب سے آج سے 9 دنوں کے لیے مارکیٹس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے ارکان صوبائی اسمبلی کیا کہتے ہیں, آئیے انہی سے جانتے ہیں. خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے, تاجر بھگت رہے ہیں. پچھلی عید بھی ایشو آتا, اور جب 8 دن آپ لوگوں کے روزگار بند کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر بہت بڑی جو معاشی صورتحال آگے ہی دگردوں ہے اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہے, تو مزید خطرناک صورتحال سے دوچار ہوگی. جب لیکن عید ہی آپ نے بند کر دی, تو عید سے پہلے 4 دن آپ بیسکلی 24 گھنٹے کی اجازت دے دیں, لیکن ایس او پی کے ساتھ جیسے دیکھیں بھی یہ مال میں کھڑے ہیں, سارا ایس او پی لوگ فالو کر رہے ہیں. معاشی لحاظ سے اچھا فیصلہ نہیں ہے. اب گراف تو پہلے ہی جو ہے نا وہ نیچے گیا ہوا ہے معاشی سرگرمیوں کا, اوپر سے انہوں نے یہ دکانیں بند کر دی ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. آج دکاندار جو اپنی دکانیں کھول کے روٹی روزی کمانے سے بھی قاصر ہیں, ان کی دکانیں 8 دن کے لیے بند کی جا رہی ہیں. اس سے بڑا ظلم نہ کبھی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کبھی دیکھا اور نہ کبھی ہوگا. لاہور میں کم اکثر جو ہے نا میرے انداز میں 10-15 لاکھ خاندان جو ہے وہ ان تاجروں کی دکانوں میں کام کر رہے ہیں. آپ ان کو عید میں بھی بھوک مارنا چاہیے. ہاں ہے ٹھیک ہے, اس پہ ہم کرونا کی سپائک جو ہے وہ دوبارہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ کچھ جو مشکل فیصلے ہیں وہ ہمیں لیں. غیر ضروری شاپنگ, غیر ضروری کام جو ہیں وہ بند ہو جانے چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری جو ہے. اپوزیشن ارکان صوبائی اسمبلی کا کہنا ہے کہ معیشت پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے, مارکیٹس ایس او پیز کے ساتھ کھلنے کی اجازت ہونی چاہیے. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ عمر اسلم, پنجاب اسمبلی. جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کامیاب رہی. آج دنیا بھی عمران خان کے اقدامات کی تعریف کر رہی ہے. سردار عثمان بزار کی عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیل. سردار عثمان بزار نے یہ بھی کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں. ہاسپٹلز میں مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کرنے والوں کو اب اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے. عید قربان قریب آتے ہی قصابوں کے نخرے بھی آسمان پر جا پہنچے ہیں. قربانی کے لیے بکنگ جاری ہے, جبکہ شہریوں سے منہ مانگے دام بھی وصول کیے جانے لگے ہیں.
बड़ी ईद पर शहरियों की बड़ी कुर्बानी का प्लान, आवाम की जेबें काटने की तैयारियां मुकम्मल। कुर्बानी के लिए गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल ऑर्डर्स की तादाद कम है, ताहम कसाबों ने अपने रेट्स कम ना किए। कसाब ईद के पहले रोज बकरे, छतरे और दुम्बे की कुर्बानी के 4 से 5 हजार मांग रहे हैं, जबकि दूसरे रोज 2500 से 3500 और ईद के तीसरे रोज कसाब कुर्बानी के 2000 से 2500 रेट लगा रहे हैं। ईद के पहले रोज गाय और बछड़े की कुर्बानी के 15 से 20 हजार रुपए, दूसरे रोज 12 से 15 हजार और तीसरे रोज 8 से 12 हजार मांग रहे हैं। ईद के पहले रोज ऊंट की कुर्बानी के 30 से 40 हजार, दूसरे रोज 25 से 30 हजार और तीसरे रोज 20 से 25 हजार मांगे जा रहे हैं। कसाबों के मुंह मांगे दाम का तोड़ करने के लिए बहुत से शहरी ईद के दूसरे और तीसरे रोज कुर्बानी करने का सोच रहे हैं। कोई कसाब 13,000 रुपए ले रहा है, कोई 15,000 रुपए ले रहा है। जो बड़े सीनियरी कसाब है वो तो 18,000 हजार में गाय वेड़ा वगैरह करें, वेड़ी वगैरह करें। और जहाँ तो बकरों का ताल्लुक है, बकरे वो देख के करते हैं। कोई 3,000 रुपये बकरे का ले रहा है, या ऐसे भी जो सीनियर कसाब बैठे हैं 20-20 साल से, वो 5-5 हजार रुपये बकरे का ले रहे हैं। सर जी इनका सीज़न है और इन्होंने तो मांगने ही मांग रहे हैं, लेकिन ये है कि कुर्बानी में आसानी होनी चाहिए और इंसान को इतना होना चाहिए कि यार हर बंदा जो है इसको कर ले। लेकिन ये है कि इस टाइम हालात जैसे जा रहे हैं, जैसे कोरोना चल रहा है, हर बंदा जो है इससे डिस्टर्ब हुआ है। दूसरी तरफ कसाबों का कहना है कि इस साल कुर्बानी के जानवर महंगे भी हैं और कोरोना के बायस ऑर्डर भी कम हैं, जिसके बायस कुर्बानी के रेट्स नहीं बढ़ाए। कसाई बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, कोई 15 भी ले रहा है, 18 भी ले रहा है, 20 भी ले रहा है। बकरे का 5,000 ले रहे हैं, बछड़े का 20,000, 18,000, 15,000। गरीब आदमी तो अब कुर्बानी कर ही नहीं सकता। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ईद कुर्बान पर कसाबों के रेट्स भी मुकर्रर करे ताकि शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मॉडल टाउन में अहम बैठक हुई। एपीसी और आज़ादी मार्च के जरिए हुकूमत को गिराने के हवाले से शहबाज शरीफ खुलकर बोल पड़े। बोले ईद के फौरी बाद रहबर कमेटी का इजलास होगा और एपीसी की तारीख का भी फैसला किया जाएगा। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने के लिए लाहे अमल तैयार हो गया। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर मौलाना फजलुर रहमान की 1.5 घंटा 1-on-1 मुलाकात जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने खुलकर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर आजादी मार्च का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये मुल्क की तारीख की बदतरीन हुकूमत है। 2 साल कारकर्दगी सिफर है, अवाम को आटा नहीं मिल रहा, चीनी को भी पर लग गए हैं, बेरोजगारी अरूज पर है और महंगाई आसमान पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से अवाम का जीना दूभर हो गया है। अब हुकूमत से जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है। और हमने ये तय किया है कि मुतहदा अपोजिशन को इस बारे में क्या लाएमल इख्तियार करना चाहिए, उसके लिए रहबर कमेटी का इजलास फिलफौर हमने बुलाया। इंशाअल्लाह रहबर कमेटी में वो तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदगी होगी। वहाँ पर जो भी एक शेड्यूल बनेगा, जो भी नुकात तय होंगे, उसको पर इंशाअल्लाह हम ईद के बाद एपीसी बुलाई जाएगी और उसमें फिर सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं गौर फिक्र करके अपना एक मुकम्मल मरबूत एक जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि अब धांधलीज़दा हुकूमत के रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। कोरोना की वजह से जमूद पैदा हुआ, अब खामोशी तोड़ देंगे। अपोजिशन की एपीसी के बाद इस हुकूमत के खात्मे के लिए आज़ादी मार्च का ऐलान किया जाएगा। कोरोना की वजह से मुल्क की सियासत में कुछ जमूद सा आया, कुछ खामोशी सी आई, लेकिन अब हमने इस खामोशी को तोड़ना है। अब ये खामोशी मजीद बरकरार नहीं रहेगी। दोनों अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू की जाएगी। एपीसी इजलास में एजेंडा पेश किया जाएगा कि कैसे हुकूमत को घर भिजवाना है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दौरान मुलाकात ईद के बाद रहबर कमेटी का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक किया गया है। जराए का मजीद बताना है कि रहबर कमेटी में मजीद मेंबरान शामिल करने पर भी इत्तेफाक किया गया। रहबर कमेटी एपीसी का एजेंडा और आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी। रहबर कमेटी के फैसलों पर एपीसी मुनक्किद की जाएगी, जबकि रहबर कमेटी और एपीसी के फैसलों के साथ हूँ मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत के खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान
मुलाकात जो हुई है उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। दौरान मुलाकात ईद के बाद रहबर कमेटी का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि रहबर कमेटी में मजीद मेंबरान शामिल करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फनकारों के एहतजाजी मुजाहरों की पंजाब असम्बली में भी गूंज है। हुकूमत ने ईद के बाद थिएटर खोलने का इंतजार दे दिया है। चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद की ज़ेर सदारत होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में महकमा इत्तलात और सकाफत के मुतालिक सवालात के जवाबात दरियाफ्त किए गए। नून लीग की रुकन सादिया तैमूर कहती हैं, फनकारों के एहतजाजी मुजाहरे ने साबित किया हुकूमत शोबी से वाबस्ता अफराद को रोजगार देने में नाकाम हो गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने जवाब देते हुए कहा कि जितनी तरीके इंसाफ की हुकूमत में फनकारों को इमदाद दी गई, साबिक हुकूमत में इतनी नहीं दी गई थी। कोरोना वायरस के बायस थिएटर से वाबस्ता अफराद को माली मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब को थिएटर ओपन करने की सिफारिश कर दी है। जल्द थिएटर खोल दिए जाएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास 7 अगस्त तक मुलतवी करने पर मुस्लिम लीग नून ने एतराज उठा दिए। मुस्लिम लीग नून के खलील तहर सिंधु बोले, हुकूमत ने इजलास गैर आईनी इक़दाम के तहत 7 अगस्त तक मुलतवी किया। हुकूमत जिस तरह कानून साजी में कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है। इतना गुजारिश जरूर करता हूँ कि अगर जज साहब ने इस पर 7 दफा बात की है, हाउस ने रेजोल्यूशन पास किया, तो क्यों उसको अब उसमें तकलीफ क्यों हो रही है? सूबाई वजीर चौधरी ज़हीरुद्दीन का कहना था कि असम्बली का इजलास पार्लिमानी रूल्स के मुताबिक 7 अगस्त तक मुलतवी किया है। पंजाब असम्बली का इजलास 7 अगस्त तक मुलतवी करने में कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं। 28 जुलाई से 6 अगस्त तक के अयाम बगैर TADA के तस्वर होंगे। पंजाब असम्बली के इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन मियां मोहम्मद शफी ने इजलास 7 अगस्त बरोज जुमा दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अली, अकबर सिटी फोटो। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, सरकारी निर्ख से हटकर आटा बेचने वाला अब जेल जाएगा। आटे की ओवर चार्जिंग पर जुर्माना ही नहीं बल्कि दुकान भी सील कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने आवाम को आटे की सरकारी रेट पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया है। सरकारी रेट से हटकर फरोख्त पर दुकानदार को जेल भेजा जाएगा। सूबाई वजीर सन्नत और तजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि सूबे भर में 20 किलो आटे के थैले की 860 रुपए और 10 किलो के थैले की 430 रुपए में फरोख्त यकीनी बनाई जाएगी। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज करने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर ने बाज़ इलाकों में आटे की मुकर्ररा निर्खों जायद पर फरोख्त का सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि इशियाए जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इंतजामिया और मुतल्लिका अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। महंगाई माफिया को लूट मार के जरिए गरीब आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि इंतजामिया खुद कीमतों का तयन करती है, उन पर अमल दरामद की भी जिम्मेदार है। इस सिलसिले में कोताही या गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 200 तो सरदार उस्मान बुज़ार जैसा। बुज़ार सरकार ने करीबी दोस्त के लिए सरकारी दफ्तर को खाली करवाकर गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया है। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के दफातर को मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला पंजाब के करीबी दोस्त और चेयरमैन एग्री सीडो फर्टिलाइजर मलिक मोहम्मद मसूद आवान की जाती रिहायशगाह में तब्दील कर दिया गया। जराये के मुताबिक वजीर आला सेक्रेटरीट की जानिब से महकमा सोशल वेलफेयर के आला हुकाम को हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर बैतुल माल के दफातर खाली कराए जाएं, जहां फैज अहमद फैज रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। मगर रिसर्च सेंटर बनाने के बजाय डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर और अमीन बैतुल माल पंजाब के सरकारी दफातर को खाली कराकर वहाँ बेड, सोफे, AC और LEDs लगा दी गई हैं। ये तमाम खर्चा भी सरकारी खजाने से किया गया, जिसके बाद वजीर आला सेक्रेटरीट के ही हुक्म पर दोनों तैयार शुदा कमरे वजीर आला के करीबी दोस्त मलिक मोहम्मद मसूद अवान के हवाले कर दिए गए। जराये के मुताबिक मलिक मोहम्मद मसूद अवान अक्सर शाम के औकात में बैतुल माल पंजाब के दफ्तर में कायम रिहायशगाह आते हैं और सुबह वापस चले जाते हैं। इस मामले पर DG सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल शाहिद नियाज ने मुवक्कफ देने से मुआतरत कर ली। शाहिद नियाज का कहना था कि इस वक्त इस मामले पर कोई बात नहीं कर सकता। बुज़दार सरकार का यूटर्न, सरकारी अस्पतालों की पुरानी लिफ्ट तब्दील करने का मंसूबा भी रवा माली साल के बजट में तर्क कर दिया गया। गुज़श्ता माली साल के दौरान 68 करोड़ रुपए से पुरानी लिफ्ट तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया, जो अब खत्म कर दिया गया है। गुज़श्ता माली साल मंसूबे के लिए 33 करोड़ जारी न करने से मंसूबे का बाकायदा आगाज किया जाना था, जो कि इस बरस ना हो पाया। टीचिंग अस्पतालों की बरस पुरानी लिफ्ट्स को तब्दील करने के लिए हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के दौरान 68 करोड़ रुपए का मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया। तहम गुज़श्ता माली साल के दौरान इस मंसूबे के लिए मुख्तस करदा 33 करोड़ रुपए जारी नहीं किए गए। और खुसूसी बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए 3 अरब 31 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 51 बसें फराहम की जाएंगी। सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी मोहम्मद इखलाक का कहना है कि बसों की तादाद में इजाफा होने से 34,000 बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मुहैया हो सकेगी।
पंजाब भर के खसूसी तालीमी अदारों को 51 बसों की फराहमी के लिए तकरीब का इनेकाद। सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी मोहम्मद इखलाक ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन जवेद बुखारी, डीजी परवेज भट्ट और ताहिर हुसैन गाजी भी मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद इखलाक का कहना था कि खसूसी बच्चे खुद से स्कूल नहीं पहुँच सकते, इसलिए इन्हें घर तक पिक एंड ड्रॉप फराहम करना पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम है। इन बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि ये आम राइड पर नहीं आ सकते। इनकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो हमें इनको मजबूर करती हैं कि कोई हेल्पफुल, हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो भी सपोर्टर हैं इनके। तो ये बसें जो आज मिल रही हैं इससे हमारे अदारे की और इन बच्चों की जो वेलफेयर है और ज़्यादा अच्छी होगी। तकरीबन इस वक्त 34,000 स्टूडेंट हैं। सूबाई वजीर चौधरी मोहम्मद इखलाक का मजीद कहना था कि खसूसी बच्चे माशरे का फाल जुज़्व हैं। अगर इन पर मेहनत की जाए तो इन्हें माशरे का कराम जुज़्व बनाया जा सकता है। इन बच्चों में बड़े बड़े काबिल और बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं। अगर उनको ज़रा टेक केयर किया जाए, उनका ख्याल किया जाए तो इनमें बड़े बड़े काबिल बच्चे हैं जो आगे चल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी बड़ा काम कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत की जानब से पहले मरहले में जिला लाहौर में 3, कसूर में 4 और शेखुपुरा में कायम स्पेशल एजुकेशन अदारों को 2 बसें फराहम की गई हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ कानूनदान अहमद अवैस को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी कानून नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सरदार अहमद जमाल सुखेरा के मुस्ताफी होने के बाद एडवोकेट जनरल पंजाब का ओहदा कुछ अरसे से खाली चला आ रहा था। अहमद अवैस इससे कबल भी एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं। इससे कबल अहमद अवैस 25 सितंबर 2018 में एडवोकेट जनरल बने थे। 6 माह से जायद अरसा बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब रहने के बाद इस्तीफा दे दिया था। जबकि ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल अकेडमीज ने 3 अगस्त को अकेडमीज खोलने का ऐलान कर दिया है। कहा, अगर हुकूमत की जानिब से अकेडमीज खोलने का ऐलान न किया गया तो 4 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाजी धरने की कॉल देंगे। ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल अकेडमीज के चेयरमैन राना अंसर महमूद ने दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 अगस्त को अकेडमीज खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुल्क भर की अकेडमीज गुज़िश्ता 5 माह से बंद है। सेक्रेटरी एजुकेशन की जानब से 15 जुलाई से अकेडमीज को खोलने की यकीन दहानी करवाई गई, मगर वादा वफा न हुआ। हुकूमत 3 अगस्त को अकेडमी खोलने की इजाजत दे। हुकूमत पाकिस्तान आला इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि अगर पाकिस्तान की तमाम अकेडमीज को SOP के मुताबिक 3 अगस्त को खोलने के अहकामात जारी किए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर उस्तादा का कहना है कि अकेडमीज और उस्तादा के मसाइल पर अदम तवज्जुही हुकूमती नाअहली का खुला सबूत है। हुकूमत ने मुल्क भर में तमाम कारोबार और महकमे SOPs के तहत खोल दिए, मगर तालीमी इदारों बारे वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी। हुकूमत रिलीफ पैकेज के साथ इमारतों के किराए माफ करे। गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा ये है कि या तो ईद के बाद जो है वो हमारे अदारे खोल दिए जाएं, अगर नहीं खोलते एहतजाज की कॉल तो दे दी हम लोगों ने। और तीसरी चीज़ ये, अगर ये भी नहीं होता तो फिर हमारी कंपनसेशन की जाए, हमारे रेंट अदा किए जाए, हमारे लिए कोई फंड्स बनाए जाएं या कोई इस तरह का जो है वो काम पॉलिसी बनाए ताकि हम प्रॉपरली SOPs के तहत जो है ना अपने इंस्टीट्यूट्स खोल सकें। उस्तादा का कहना था कि हुकूमती नाअहली के बाइस लाखों उस्तादा और अमला बेरोजगार, जबकि 7.5 करोड़ से ज्यादा तलबा तालीम से महरूम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उस्तादा अपने हक के लिए सड़कों पर निकलने से भी दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। ग्रैंड हेल्थ अलायंस जनरल अस्पताल का ईद के बाद हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंस न देने पर तहरीक चलाने का ऐलान सामने आया है। महकमे एंटी करप्शन की जानिब से हॉस्पिटल इंतजामिया पर किए जाने वाले पर्चे की भी सख्त मजम्मत की गई है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस जनरल अस्पताल महकमा सेहत के खिलाफ एक बार फिर मैदान में आ गई। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन जनरल अस्पताल डॉक्टर अम्मार यूसुफ ने ईद के बाद मुल्क भर में तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। बोले, रिस्क अलाउंस हमारा हक है, हम तहरीक चलाएंगे कि तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को रिस्क अलाउंस की मद में 20-20 रुपए अपनी जेब से दें। ये मुतालबा आज आखिरी बार कर रहे हैं रिस्क अलाउंस का। हमें कोई क्राइटेरिया से गर्ज नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं देना। हमारा मुतालबा नहीं, हमारा हक है। आपने देना है सबको दें, वरना आप किसी को भी ना दें। लेकिन अगर आप नहीं देते तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी और ईद के बाद
इंशाल्लाह ताला ईद के बाद तहरीक का आगाज किया जा रहा है। डॉक्टर अम्मार यूसुफ ने महकमा एंटी करप्शन की हस्पताल इंतजामिया के खिलाफ पार्किंग के मामले पर दी जाने वाली FIR की भी मजम्मत की। बोले अगर महकमा कोई तहकीकात करना चाहता है तो पार्किंग के ठेकेदारों से करे। YDA के अहदेदारों का कहना था कि कोरोना केसेस में कमी का सहरा हेल्थ प्रोफेशनल्स के सर जाता है। आज रिस्क अलाउंस के हक से भी महरूम रखा जा रहा है। ईद के बाद मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। किसान बोर्ड का अपने मुतालबात के हक में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में सूबे भर से किसानों ने शिरकत की। एहतजाज की क़यादत सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान चौधरी शौकत अली चद्दड़ और सदर किसान बोर्ड लाहौर डिवीजन मियाँ रशीद मनहाला ने की। इस मौके पर मियाँ रशीद का कहना था कि बाबरा ने किसानों का मुआशी कत्लेआम शुरू कर रखा है। महकमा नहार और पटवारी भी बॉर्डर की ज़मीनों पर कब्जे करके किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 72 सालों से हर सियासतदान ने वोट तो किसानों से लिए मगर तहफ़्फ़ुज़ स्मगलरों का किया। बॉर्डर रेपरी के तमाम तर देहाती बुनियादी सहूलियात से महरूम क्यों हैं? सीनियर नायब सदर लाहौर डिवीजन मियाँ इलियास ने कहा कि बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी और कब्जों के नतीजे में बॉर्डर के किसान खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बावजूद हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सदर किसान बोर्ड चौधरी शौकत अली चद्दड़ ने वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए मुतालबात मंजूर न होने पर बनी गाला के बाहर अगला एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। लग्जरी शूज इंसिग्निया की मॉडल टाउन ब्रांच पर 27 जुलाई से 31 जुलाई तक फ्लैट 25% ऑफ का आगाज कर दिया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद ने शॉपिंग के लिए रुख कर लिया है। मुनफरिद लग्जरियस और जदीद जूतों के ब्रांड इंसिग्निया लिंक रोड पर वाक़े अपने फ्लैगशिप स्टोर में 5 रोजा सेल का आगाज कर दिया। ये सेल 25% होगी और 27 जुलाई से 31 जुलाई तक जारी रहेगी। खूबसूरत और दिलकश जूतों पर मुश्तमिल इस नुमाइश में जदीद वैरायटी के कैजुअल वेयर जूते, बैग और क्लचेस रखे गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद अपने कपड़ों से मिलते जुलते जूते और बैग्स खरीदने में मसरूफ थी। 25% कमी के साथ शहरियों ने अपने पसंद के जूते भी खरीद लिए। They are offering flat 25% off an entire stock, and I have already bought my Eid pair and Insignia rocks. बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं, तो इन्होंने कहा कि इंसिग्निया नई ब्रांच खोली है, इनके स्टाइल्स अच्छे हैं, डिज़ाइन अच्छे हैं, तो अब ये पसंद कर रहे हैं। एकदम एक्साइटमेंट हुई हुई इनको। स्टोर इंतजामिया का कहना था कि इंसिग्निया अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए शहरियों को बेहतरीन क्वालिटी और मयार के जूते फ्राहम कर रहा है। ये हमारी 18वीं आउटलेट है जो कि इंसिग्निया के नेटवर्क में शामिल हुई है, और इसकी ओपनिंग पे हमने फ्लैट 25% डिस्काउंट ऑफर किया है ताकि हम कस्टमर्स को जो है वो अकोमोडेट कर सकें। इंसिग्निया स्टोर इंतजामिया का कहना है कि ये सेल 5 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन राना अयाज के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल